Ladies and gentlemen, we are very pleased to have with us our speaker of the day, Mr. Manish Karandikar, Director, Embedded Creations and DeFi Fashion Park Private Limited. A very warm welcome to you, sir. I would like to request you to kindly join us on dais. Sir's extensive experience in the field of digital solution involve police department, tribal department, textile department, handloom department, district planning, revenue generation, government medical colleges, and local administration during COVID times. Sir has also received special appreciation from Governor and Chief Minister of Maharashtra for his commendable contribution. Sir has also published numerous research papers and contributed for more than 12 state-level projects. Sir has even initiated a project on heritage art under Fabric of Unity Campaign 2022 for celebrating 75th year of independence. A very warm welcome to you, sir. I would like to request Dr. Suresh Karade, Director Incubation Center SOFT and Steering Committee member of GFI to welcome sir with token of appreciation. I request Mr. Karandikar sir to kindly start with the keynote. Hello students. First of all, I'm a bit tense to stand over here in Maharshi Karveji's institution, 125 years of legacy it is. ये सही में थोड़ा डिप्रेशन है ऐसा आप बोल सकते हो क्योंकि फैशन इज डेफिनेटली नॉट माई कप ऑफ टी but data analytics is definitely mine. So I'm an IT guy primarily and I'm working with various government projects including police. आज पुणे में भी आपका पुलिस कमिश्नरेट में जो सॉफ्टवेयर चलता है सेवा नाम से एक सिस्टम that is being developed by us. It received 2018's National Scotch Award. So managing, analyzing data is primarily my forte. But since 2017, I am working with textile department also. महाराष्ट्र में जो इलेक्ट्रिकल सब्सिडी दी जाती है सारे यूनिट्स को, उसका जो पोर्टल है करीबन 12,000 यूनिट्स उस पर रजिस्टर्ड है और इलेक्ट्रिकल सब्सिडी दी जाती है, उसका मैनेजमेंट हम लोग करते हैं. वो पोर्टल भी डिज़ाइन हम लोगों ने किया है. बट जैसे इनके साथ काम करना चालू किया तो इनके जो डायरेक्टर्स थे या कमिश्नर थे, अभी चौथे कमिश्नर है जिनके साथ काम कर रहा हूँ, दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू द वर्ल्ड ऑफ फैशन यू मे से इन 2018. मैंने हैंडलूम कॉरपोरेशन के साथ काम करना चालू किया और वहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आई कि अब डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल शीट का डेटा मैनेज करना यही हमारा प्राइमरीली रोल है. मैं मेडिकल साइंस से लेके हर जगह यही करता हूँ. तो सस्टेनेबिलिटी ये एक जब विषय के ऊपर हम लोग स्टैटिस्टिक्स प्लॉट करने की कोशिश करते थे और हैंडलूम कॉरपोरेशन के प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग और फ्यूचर प्लान के हिसाब से जब सोचते थे तो एक चीज़ समझ में आई कि वी हैव अ गोल्ड बट वी आर नॉट एबल टू सेल इट. वी हैव अ गोल्ड. अगर आप 2015 के भी कुछ लीडिंग रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें ये बोला गया है कि धीरे धीरे, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कोविड एरा 2015 से, कि there is going to be a sharp swing in favor of sustainable fashion. 66% McKinsey का रिपोर्ट है कि 66% buyers will be shifting to this sustainable fashion within next 5 to 6 years. They are ready to shell off money, excess money, माने आराम से 10 से 15% तो ऊपर और कुछ लोग तो 50% तक भी ऊपर पे करने को तैयार है. This is on one side. एंड ऑन अनदर साइड वी फाइंड दैट इसमें जो आर्टिस्ट है ये उनके वेजेस से लेके सस्टेनेबिलिटी का ही प्रॉब्लम है. तो हमारे एक एनालिटिक्स में एक चीज़ हमारे समझ में आई उभर के कि सस्टेनेबल फैशन, इस वर्ड को सस्टेन कराना ही सबसे पहला चैलेंज है. अनलेस दिस सस्टेन्स फॉर अनदर 5 to 10 years, it is very difficult to keep your customer attached to this particular buzzword.
और ये जब तक होगा नहीं, माने एक अगर हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं तो टॉयलेट जैसी छोटी चीज भी जब तक घर घर में शौचालय वाला एक शब्द भी लाया नहीं गया तब तक उसके लिए अवेयरनेस अपने देश में क्रिएट कर पाना मुश्किल था. It took governments basically 5 to 6 years and push this particular topic. But आज आपकी जनरेशन में मेरे बच्चों में भी देखता हूँ कि रोड पे अगर कोई लिटरिंग कर रहा है, कोई थूक रहा है, कोई गंदगी कर रहा है, तो मैंने देखा है बहुत सारे यूथ टोकते हैं उसे. एटलीस्ट एक ऐसा लुक देते हैं कि उसे कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है. डरते बहुत बार झगड़ा करने से, बट इतना तो कर ही लेते हैं. सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. प्रोडक्ट कोई भी हो, उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग कितना भी उसके पीछे जान लगा दे. रेवेन्यू, पैसा, वो जो बोलते हैं कि माना पैसा खुदा नहीं, बट खुदा से कम भी नहीं. तो चाहिए तो है. सबका आखिरी एम, आप यहाँ पे भी कोर्स कर रहे हो, सीख रहे हो, आगे भी जाके या तो किसी बड़े हाउस में बड़े एजेंसी के साथ काम करोगे या खुद का वेंचर डालोगे. बट द अल्टीमेट गोल इज अर्निंग मनी. And if you want to earn with sustainable fashion, you will have to first of all make your customer also literate and aware about this. This is what I personally feel, or the results of data analytics they show. अब थोड़ा सा अगर सबसे पहले तो मैडम मेरे पास कितना समय है? How much? 15 मिनट है. राइट. आपका भी पेशेंस में ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ. आई अंडरस्टैंड यू आर बिजी. सो विद ड्यू परमिशन फ्रॉम मैम, हम लोग उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोगों को क्या करने को होना. और जितने भी गवर्नमेंट में हम लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसका जो फाइंडिंग है मैं आपसे 5 से 10 मिनट में शेयर कर रहा हूँ. प्राइमरीली सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करना, और रीबॉक वगैरह से, माने वेस्टर्न साइड से अपने देश में आने से पहले ही अगर हम लोग खुद के लिए ये कर लेते हैं तो जाहिर है हम हमारे व्यूअर्स तक, हमारे लोगों तक ये इसका प्रॉफिट और इसके एडवांटेजेस परकोलेट कर पाएंगे. अदरवाइज बाहर की कंपनियां आके, माने शिफ्ट तो दिखना चालू हुआ है, और कोविड के बाद से और जब से इंडिया ने नो प्लास्टिक पॉलिसी लाई है तो हम लोग ये सारे फाइबर्स धीरे धीरे रिजेक्ट करके ऑर्गेनिक फाइबर्स की तरफ जाना चालू कर रहे हैं. बैम्बू, बनाना, इसके ब्लेंड्स, लोटस और भी बहुत सारे फाइबर्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं. प्राइमरीली द फोकस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इट. जाहिर है ये कॉस्टली अफेयर है, और कॉस्टली अफेयर होने के कारण ये जो हम लोग बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस बाइंग, माने 200 रुपये में 3 टी शर्ट का पैकेट हम लोग खरीद लेते हैं सर्फ करते करते मिंत्रा पे, यहाँ पे. ये धीरे धीरे कम होगा, पर कम होगा जाहिर है. इफ यू आर ट्राइंग टू हैव अ क्वालिटी मटेरियल तो आपको 200 रुपये में 3 टी शर्ट मिलेंगे ही नहीं. तो इसके लिए आपको आपके कस्टमर को, बायर को अवेयर कराना पड़ेगा. और ये अवेयरनेस डजंट मीन दैट यू हैव टू टेक सेशंस एंड क्लासेस एंड समथिंग. इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हम लोग शौचालय का जो एग्जांपल दिया, दो इट मे नॉट सूट ओवर हियर, बट इन चीजों को भी लोगों ने लोगों के गले तक, माने एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों के गले में उतारा, हलफ से नीचे भी उतारा कि दिस हैज टू बी देयर, एंड दिस दे वेर सक्सेसफुल इन मेकिंग इट अ बज़वर्ड. इवन गुटके जैसी चीज जहां गवर्नमेंट ने बैन की है, बट उसके लिए भी बज़वर्ड क्रिएट किया गया और बड़े बड़े एक्टर ऐसा कर करके उसको बेच रहे. आई थिंक यू गॉट इट. बराबर है. या माने या तो बोलो जुबान केसरी, या और भी क्या वो है कि माने शौक बड़ी चीज है टाइप के टैगलाइन से ये खाने वाले लोग गोल्फ खेलते हुए दिखाए जाते हैं, और एक एलीट क्लास को पोर्ट्रे करके आखिरी में गुटखा बेचा जाता है. ये कहीं नहीं होता कि गुटखे का एक पाउच मैंने मुंह में डाल दिया और मैं गोल्फ खेलने लग जाऊंगा, और दे आर एक्चुअली नॉट रिलेटेड थिंग्स. बट मार्केट में इसको इसी तरह से रिलेट किया गया है. तो जब ये रिलेट कर सकते हैं तो अच्छे प्रोडक्ट को क्यों नहीं रिलेट कर सकते. माने हम लोग तो बेच रहे हैं वो चीज जो नेचर को सेव करने के हिसाब से, हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर लाना है तो हम लोगों को ये फैशन की तरफ जाना ही पड़ेगा. आज मिडिल ईस्ट से लेके बहुत बार ओशंस जहाँ पे है, जहाँ बैरन लैंड ज़्यादा है, वहाँ कपड़ों के डंपिंग यार्ड्स में ये कन्वर्ट होने लगे हैं.
अगर हम लोगों को ये सब रोकना है तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल फैशन को, माने ही हमारे जो रूट्स हैं उधर हमें चीज़ों को ले जाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक डाइज, मिनिमम ऑफ एमिशन, माने हमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पे बेस जितना कम फैशन इंडस्ट्री को ले आएंगे बेहतर होगा। पर ऐसे सारे केसेस में जो आज गांव में वीवर है या आप ही के जैसे, माने आई विल कॉल देम ऑल्सो एज फैशन डिजाइनर्स, बट इन लोगों को मेन स्ट्रीम में कैसे लेके आएंगे और हमारे बायर्स को हम लोग किस तरह से अवेयर करेंगे कि ये जब आप खरीदते हो तो ये सस्ते में मिलेगा ही नहीं, ये सबसे पहले हमें मालूम होना। You will have to shell out some price basically to save your mother earth. आप छोटा काम नहीं कर रहे हो by promoting sustainable fashion. अब ये sustainable fashion प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने जो कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट किए मैं आपके सामने 2 मिनट में शेयर करूंगा। I'll start with the best campaign. यूजुअली इसकी प्राइस क्यों ज्यादा होती है, इसके ऊपर बहुत बहस होती है कि हैंडलूम की साड़ियां या हैंडलूम के प्रोडक्ट, माने जो रेगुलर यूजर्स है दे डेफिनेटली आर माने ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर हैंडलूम, बट एक ऑकेजनली खरीदने वाला आदमी कि साल में एक आधा खरीद रहा है, व्हाई दिस इज 10,000, व्हाई दिस इज 15,000। तो हम लोगों ने एक फैब्रिक ऑफ यूनिटी नाम से एक कैंपेन चलाया, मैडम ने जिसका जिक्र किया। The intention was basically to link common man with intricacies and the efforts required to view that particular fabric. आप ये बोल सकते हो कि लेडीज क्लब, बाद में रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, ऐसे एलिट संस्थाओं से IAS ऑफिसर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हम लोगों ने नागपुर एंड अराउंड लगभग 1426 लोगों ने मिलके एक 75 फीट का कपड़ा बुना। हैंडलूम बीच में रख दिया गया था इनके ऑफिस में बाहर पब्लिक के लिए, और लोग उसके ऊपर रोज आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हर एक आदमी अपने कैपेसिटी से बुन के जा रहा था। बट ये जब बुनना चालू हुआ तो पब्लिक ने उसके, माने छोटा सा एक 4 धागे बुनने में कितनी, जिसको बोलते हैं हवा टाइट हो जाती है, वो समझ में आता है लोगों को हाउ मच एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विथ हैंडलूम यू विल फाइंड दैट इट इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज ऑल्सो। माने आपको एक हैंडलूम क्या क्या सिखाता है, इसके ऊपर मैं 2 मिनट बाद बात करूंगा। तो इतनी सारी चीजों में महारत हासिल करने के लिए क्या एफर्ट्स लगते हैं और यू आर पेइंग फॉर दोज एफर्ट्स। ये जब लोगों को पता चला तो हम लोगों ने देखा जहां हैंडलूम रखा है लोग उस पर व्यू करते थे, व्यू करने के बाद अपनी फैमिली में बहुत बात करते, यार इट्स रियल आर्ट ये वो, और बाहर जाके शोरूम से कपड़ा खरीद के ही घर जाते थे। सो जो एक रिस्पेक्टफुल एंगल वीवर के लिए आता है, ऑटोमेटिकली आपका बायर उस प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छे से एसोसिएट होता है। अदरवाइज 2000 रुपए में पावरलूम पे बुने हुए कपड़े भी आज हैंडलूम के मार्क के साथ बनावट मार्केट में बेचे जा रहे हैं। अब अगर इस कंपटीशन में वीवर को खड़ा रहना है तो उसके पास 2 ही चीजों का चारा बचता है, एक तो धागा मारे या सबस्टैंडर्ड धागे के साथ बुनना चालू करे। अब ये जब चालू होता है चोरी चकारी, क्योंकि प्राइस वॉर है, तो ऐसे केस में वो खुद ही के प्रोडक्ट की और खुद ही के हुनर की क्वालिटी गिराता है, और जब ये क्वालिटी गिरती है तो धीरे धीरे वो बाहर हो जाता है इस रेस से। सबसे पहले तो बहुत सारे वीवर, बहुत सारे बुनकर या बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसी जगह बैठे छोटे छोटे गांव में जिनका बाहर कनेक्ट नहीं है। तो ये सारा कनेक्ट हम जैसे लोग ही, माने प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो सॉफ्ट, इसके लिए कोई दूसरा माने एडजेक्टिव्स की जरूरत नहीं, इट इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव। तो ऐसे केस में अगर हम लोग इस कैंपेन को चलाते हैं कि व्हाट इज बेसिकली सस्टेनेबल फैशन एंड व्हाई यू नीड इट, मैंने आपको एक कैंपेन बताया, उसी तरह से हम लोगों ने फैशन शोज भी जब होते हैं तो मैक्सिमम लोगों के पार्टिसिपेशन को, एक प्रतिष्ठित नारी प्रतिष्ठित साड़ी नाम से एक कैंपेन चलाया था, जिसमें हर लेडी को अपने हिसाब से कैंपेन करने की छूट दी गई थी। एंड you won't believe, but lot many ladies actually contributed like anything in these kind of open ended you can say campaigns. अब इस टाइप के कैंपेन्स अगर हम लोग रेगुलर चलाते हैं जहां पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, आपके इंस्टीट्यूट के बाहर के लोग इसके साथ एसोसिएट होना चालू होंगे जो बायर्स हैं,
तो आप आपके लिए ही मार्केट क्रिएट करते जा रहे हो। अगर आपने डिजाइन किए हुए कपड़े हम लोग किसी वेबसाइट पे या कहीं ऑनलाइन पे भी सेल के लिए रख सकते हैं, तो डेफिनेटली भले ही दूर के लोग ना खरीदे, बट आप आपके रिश्तेदारों में, आपके घर वालों में कोई ना कोई तो आपको बढ़ावा देने के लिए आप ही का गारमेंट खरीदेगा। बट इन दैट प्रोसेस यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू पोस्ट द थिंग्स ऑन वेबसाइट। मिंत्रा पे भी प्रोडक्ट डालना माने उसके 4 फोटो 4 एंगल में लगते हैं, उसके डिस्क्रिप्शंस लगते हैं, उसका वार वेब सबके इंफॉर्मेशन लगती है, डाई कौन से यूज किए, ये वो सारा आपको लिख के देना पड़ता है व्हेन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू पोस्ट योर प्रोडक्ट्स। So unless you go with these kind of experiences, you will never find कि public इसके लिए ओपिनियन क्या आता है आपके पोस्ट किए हुए प्रोडक्ट्स के लिए। सो सस्टेनेबल फैशन के ऊपर मैं एनालिटिक्स के हिसाब से ही और 15 मिनट में जो मुझे बोलना है, आई कैन रिलेट इट वेरी वेल विथ वन, यू कैन से अ शॉर्ट स्टोरी। आई थिंक दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू डाइजेस्ट। हमने रामायण में एक कहानी देखी है कि हम हमेशा इस चीज को हीरा और जौहरी में जोड़ने की कोशिश करते, तो राम जैसे जौहरी और हनुमान जैसा हीरा, ये कॉम्बिनेशन दुनिया में और कहां मिलेगा आपको। उन्होंने उनको पहचाना था और एक बहुत बड़े टास्क के लिए भेजा भी था, सीता को लाने के लिए। बट वेन ही वेंट साउथ, डाउन साउथ, और एक समुंदर के पास जाके रुक जाते हैं एंड ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये समुंदर में कैसे क्रॉस करूंगा। एट दैट टाइम देयर इज वन पर्सन और वन कैरेक्टर हु प्लेज अ वेरी की रोल इन अगेन डेवलपिंग द बिलीफ, सेल्फ बिलीफ इन हनुमान जी, एंड ही इज जाम्बुवंत। आप में से कितने लोग ये नाम जानते हैं? ही वॉज अ मेंटर, and that is where I think soft stands. You are a mentor. और आपके पास ऐसे बहुत हनुमान जी हैं। Of course, this being a female institute, ladies institute, तो आप कैरेक्टर को उस तरह से ढाल लीजिए। और आपके पास एक एलिट बायर है, फॉरेन में है, अपने यहाँ पे भी है। नीता अंबानी जैसे कल्चरल सेंटर में आपको ऐसे बहुत सारे बायर मिलेंगे जो इसके लिए सपोर्ट करना चाहते हैं। We will put them in that character of राम जी। उन्हें सस्टेनेबल फैब्रिक को दुनिया भर ले जाना है, बाहर ले जाना है। हमारे पास अच्छे डिजाइनर्स है, अच्छे वीवर्स है, बट अच्छे वीवर्स का सेल्फ बिलीफ कहीं तो भी टूटा हुआ है। ये अगर हम लोग सिर्फ जगा सकते हैं तो आई कैन गारंटी, क्योंकि इसमें दूसरा कोई भी इशू नहीं है। हम लोग जितने व्यूवर्स के यहाँ जाते हैं, यहाँ पे भी अभी आपने पैठनी का लगा हुआ स्टॉल देखा, अभी हम उनसे वही बात कर रहे थे, इससे कि जितना भी मैन्युफैक्चर किया सब बिक जाता है, सब बिक जाता है, सब कुछ बेचा जा रहा है, फिर भी फिर वो चीज क्यों मिसिंग है कि सेल नहीं है या हमें वेजेस नहीं मिल रहे। वो इसीलिए क्योंकि इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है, माने एक मैन्युफैक्चरर है और एक उसका कंज्यूमर है, इसके बीच का ब्रिज गायब है। और इस चीज़ के ऊपर अगर हम लोग कुछ एफर्ट्स लेते हैं तो ये सस्टेनेबल फैशन हमारे देश में लाने की ज़रूरत नहीं। व्हाट वी फील फ्रॉम फिगर्स, फैक्ट्स, हमारे देश में पहले से था और ये आज भी है। अभी G20 में नागपुर में जब हुआ तो आई वॉज सरप्राइज, जितने लोग G20 के डेलीगेट्स थे, न्यूजीलैंड के 2 लोग मेरे साथ बात किए 2 दिन, एंड उनका अपने यहाँ के सारे चंदेरी हो, पटोला हो, इतना ज्यादा रिसर्च और नॉलेज था कि उसमें से आधी चीजें तो मुझे भी याद नहीं थी। सो दे कम विथ प्रिपरेशन, दे कम विथ यू कैन से माइंड सेट, दे वॉन्ट टू बाय, बट द थिंग इज दे आर नॉट एक्चुअली कनेक्टेड विथ द ग्रास रूट लेवल। क्योंकि बीच में जो जाम्बुवंत का रोल प्ले करने वाले लोग हैं वो कम है। हमें इन व्यूअर्स में, और कल को आप भी खुद को उसी जगह पे देख सकते हो कि यू हैव गट्स, यू हैव टैलेंट, यू आर लर्निंग इन अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। आपके डेफिनेटली मैंने यहाँ कपड़े भी देखे, आपका प्रेजेंटेशन देखा, आपका कॉलेज का लोगों का ये तो वर्ल्ड क्लास है। बट आप जब यहाँ से डिटैच होकर बाहर जाते हो तो इसे कैसे कंटिन्यू कर पाओगे? अनलेस यू आर अ कम्युनिटी कनेक्टेड टुगेदर हु कंटिन्यूअसली टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल फैशन एंड कीप्स ऑन प्रमोटिंग इट, यू विल नॉट बी एबल टू गेट मार्केट। और मार्केट नहीं होगा तो एक अच्छे कॉज को हम लोग हाथ धो बैठेंगे। कॉज बहुत प्यारा है,
इसके ऊपर काफ़ी देर चर्चा की जा सकती है, बट आई एम बेसिकली गिवन 15 मिनट्स एंड एनी हाउ स्टूडेंट्स के शूज़ में अगर मैं खुद को रखता हूँ तो आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड एनी लेक्चर बियॉन्ड 15-20 मिनट्स इज अ टॉर्चर. सो आई डोंट वांट टू गिव अ लेक्चर. आई जस्ट वांटेड टू जस्ट टच दैट टॉपिक कि आप लोग इसके एम्बेसडर्स बनिए. माने इसके एम्बेसडर बनने के बजाय तो इसका एम्बेसडर बनना कभी भी बेहतर है. बराबर है. और सस्टेनेबल फैशन जो हम में ऑलरेडी है, माने आज अगर हम लोग कुछ वेबसाइट्स देखते हैं तो रीयूज सेकंड हैंड फैब्रिक्स वगैरह वगैरह बेच रहे हैं. दे आर अगेन सेलिंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स. मेरे पास नाम है मोबाइल में, मुझे उनके नाम रटे हुए नहीं है, बट ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. यूएस में ये कल्चर चालू कर रहे हैं कि रीयूज कपड़ा वापरो. माने किसी ने फेंक दिया या एक बार दिया है तो वो कलेक्ट कर रहे हैं और लोगों को बेच रहे. हमारे यहां, मेरे बचपन में तो मुझे मालूम है एक ही टी शर्ट कम से कम 3 भाइयों तक चलती ही थी. तो ये अगर हम लोगों के यहाँ पे फैमिली में एक रिलेशनशिप था और उसमें वार्मथ भी लगता था कि मेरे सिस्टर का है, मेरे भाई का है, मेरे भाई ने दिया है, सो वी यूज्ड टू वेयर इट. माने उसमें कभी ये नहीं लगता था कि यार ये किसी ने छोड़ा हुआ है. ये निगेटिव साइड नहीं थी, रादर इट यूज्ड टू बी अ प्राउड थिंग. माँ बाप भी प्यार से ले लेते थे. और आज इसको डॉलर्स में लोग खरीद के डॉलर्स में बेच रहे हैं, एंड देन विद अ टैग ऑफ सस्टेनेबल फैशन. दिस इज व्हाट आवर फैमिली वैल्यूज आर एंड दे वेयर. 10-20 साल पहले तक हम लोग ये सब करते थे. हमें सिर्फ अपने रूट्स को खोजने की जरूरत है. एक बार थोड़ा सा पीछे जाके फिर से अगर व्हील जोर से घुमाया जाए तो वो एक्सेलरेट फास्ट होता है. तो थोड़ा एक पैर पीछे लेके अगर हम लोग दौड़ते हैं तो ये सस्टेनेबल फैशन के लाइन में दुनिया में मुझे लगता है सबसे पहले हम लोग रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ये पहले से है. और यही मैं चाहता हूं कि वो जो आपको बोला कि राम जी जैसा जोहरी, हनुमान जी जैसा हीरा, बट इससे ये अगर जो उन्हें लगता है कि ये मेरे कैपेसिटी के बाहर का काम है, ये काम करवा लेने के लिए जाम्बुवन के रोल में सॉफ्ट जैसी संस्थाओं ने अगर स्टूडेंट्स को सिर्फ मोटिवेट किया, उन्होंने भी सिर्फ मोटिवेट ही किया था, काम तो हनुमान जी ने किया. हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत है और इस कैंपेन को वर्ल्ड लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है. सस्टेनेबल फैब्रिक और सस्टेनेबल फैशन, डिज़ाइनिंग, कैंची चलाना या स्केच निकालना ये मेरा स्कोप नहीं है. बट मेरे पास जो प्रोडक्ट आते हैं इसे बेचना कैसे, इसका मार्केट कहाँ है, इसके जो बाकी स्टडीज़ होते हैं, दैट इज़ व्हाट वी डू. और मैं एक्सेल शीट्स दिखा के यहाँ आपको पकाना नहीं चाहता था, सो कॉल्ड. सो आई हैव नॉट शोन एनी एक्सेल शीट ओवर हियर. आई थिंक यू गॉट व्हाट आई वांट टू से. अगर आप बोलते हो तो मैं एक्सेल शीट खोलूंगा तो मैं आपको 2 घंटे चला सकता हूँ, बट आई हैव ह्यूज डेटा, बट आई डोंट वांट टू गो इन इट. आप लोगों का मैं एक बार एक पोल समान, सिर्फ 2 मिनट मैडम, और नॉट मोर देन दैट, लास्ट 2 मिनट्स. हाउ मेनी ऑफ यू really are interested in working with what you may say the traditional Indian art of textiles? Almost everyone. Can I know the reason why? What appeals? Why you are so much inclined in working in traditional Indian handloom side when everyone is currently wearing a Western garment? Come on, at least one of you answer me and I will stop then. Yes? Hello? Yeah. Unlike any other country, our country has a lot of textiles that we have seen. And that is why, at least I feel that I am very proud of my own textiles and how it is carried out. So that is why I support, and I feel like today I am in this Western outfit, Okay. but I always love wearing saris and everything because we represent that. Right. And showing it off is a very good thing. That is what I feel. Right. Right. Actually, it takes your country along with you on a world forum, basically. हम लोग जाने ही जाते हैं कला के लिए, हम लोग जाने ही जाते हैं बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स के लिए और एक बहुत बड़ी लेगेसी के लिए जिसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं. सो इफ़ वी आर सिविलाइज्ड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू टेक इट फर्दर.
बहुत सारा कपड़ा हमारे, थैंक्स फॉर योर इनपुट. एनीवन वुड लाइक टू ज्वाइन एंड ऐड समथिंग? मेरा सवाल वही है कि आप लोग सब, अगर इतने लोगों ने हाथ उठाया था कि हम इंडियन ट्रेडिशनल फैब्रिक के बाद काम करना चाहते हैं. यस. So I feel it makes me feel very connected to the culture. Like I'm a Marwadi, right? So I'm very connected to my culture in that sense. So whenever I'm wearing any Indian textile, it just makes me feel very connected to my roots from Right. where I belong Right. and to show it off to the world. फ्लॉन्ट करना बोलो या आप बोलो उसको, आप माने स्टोरी बनाना अगर है, तो आखिरी में जो इंडियन ट्रेडिशनल गारमेंट्स में आता है फील, जो लक्ष्मी पूजा के दिन आता है, वो डेफिनेटली एक अलग फील होता है. दैट डजंट मीन दैट आई एम निगेटिंग, यू कैन से द अपील ऑफ वेस्टर्न गारमेंट्स. जब हम किसी एक चीज को अच्छा बोलते, दैट डजंट मीन दैट हम उसके काउंटर साइड को खराब बोल रहे हैं. प्लीज डोंट टेक इट इन दैट सेंस कि मैं उसकी काउंटर साइड को, फ्लिप साइड खराब है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं. बट मैं ये बोल रहा हूं, जैसे उसने भी बोला कि ऑल्दो आई एम वेयरिंग, इवन दैट गर्ल ऑल्सो सेड द सेम थिंग, ऑल्दो आई एम वेयरिंग वेस्टर्न because it is comfortable maybe, and in my college environment it suits in a better way, but I am definitely more proud, or I feel more proud when I support our Indian traditional garments. This is what I am trying to read out of your feedback. Now if it is the case, I will rather request you to just take a pledge, नॉट बाई जस्ट रेजिंग हैंड और समथिंग लाइक दैट. इट हमारे दिल में रखिए कि हम लोग कुछ चीजों में, जैसे गणपति आता है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला कि मिट्टी के ही गणपति होना, पीओपी नहीं होना, बिकॉज इट हैम्पर्स समवेयर द एनवायरनमेंट. लोग आजकल घर में खुद के हाथ से खुद की मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं. मैंने बहुत सारे देखे, ऐसे वर्कशॉप्स भी होते हैं. 15 दिन पहले होगा, सब लोग, छोटे छोटे बच्चे भी अपने अपने हाथों से अपनी मूर्तियां बनाएंगे, उसी की पूजा करेंगे, उसी का विसर्जन करेंगे. बट 15 डेज में आप बहुत बड़ा इंपैक्ट लाते हो. आप बहुत सारे तालाबों को पोल्यूट होने से बचाते हो, और आखिरी में आप इस मूर्ति कला की आर्ट के बारे में घर में 15 दिन डिस्कस तो करते हो. तो जाहिर है कुम्हारों को कहीं ना कहीं इज्जत मिलती है, भले ही आपने उनसे कुछ खरीदा ना हो, बट जब वो व्हील घुमाता है आगे चल के कुछ बनाने के लिए, तो उसे मालूम होता है कि मेरे सपोर्ट में सोसाइटी है. ये सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. हम लोग जब वीवर्स के साथ बात करते हैं, हम लोगों ने पहली बार जब वीवर्स को शो स्टॉपर के तौर पे लाया था, आई रिमेंबर दैट डे, वो पीछे रो भी रहे थे और कांप भी रहे थे. एक अच्छे फैशन शो के आखिरी में एक वीवर उसकी बीवी के साथ जब स्टेज पे जाता है तो उसके पैर कांप रहे होते हैं, पर उन्हें खुशी इस बात की थी कि मैंने बनाई हुई साड़ियां लोगों पे कैसे दिखती है लाइव, मैंने सर कभी इससे पहले देखी ही नहीं थी. बोलते क्योंकि हमारे यहाँ कहीं तो भी वो भंडारा के पास आंदल गांव से भी अंदर कहीं तो भी बुनता है, उसके यहाँ से कोई तो भी साहूकार उठा के ले जाता है, अपने शोरूम से बेच डालता है, उसे दिखता भी नहीं उसका कपड़ा किसने खरीदा. अगर ये फील रहेगा, अगर आज एक वीवर का कपड़ा या आप जैसे भी डिजाइनर का, माने एकदम इतनी गरीबी की हमेशा माने निगेटिव साइड पे नहीं जाना है, बट आप भी कुछ बुनते हो, कुछ डिजाइन करते हो, आपको नहीं लगता कोई सेलिब्रिटी आपका कपड़ा जब पहनेगी तो वो फोटोज आपके पास आए तो आपको एक एनकरेजमेंट रहेगा कि नहीं और भी 2 ड्रेसेस बनाने को होना. वीवर्स के बच्चे समोसे की दुकान लगाने को तैयार है, बट वीविंग करना नहीं चाहते. इट्स जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि मेरे बाप को कोई इज्जत ही नहीं मिली. अगर हम छोटे से भी बिजनेस में उसके पिताजी काम कर रहे हैं, तो अगर वो फोटोग्राफ्स, वो ये चीज इंस्टाग्राम पे, आज आप सबको भी खुद के बारे में, हम लोग साइबर सेल के साथ भी काम किए, मैंने 2 ही मिनट मांगे थे, 2 मिनट एक्सेस हो गए, आई एम सॉरी, वाकया याद आया इसलिए एक्सटेंड कर रहा हूं कि 2 मिनट साइबर सेल में हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट्स किए थे, मैंने साइबर सेल को सॉफ्टवेयर दिए, मैंने 52 हफ्ते 52 स्कूल्स में साइबर अवेयरनेस के कैंपेन लिए थे ऑन बिहाफ ऑफ नागपुर पुलिस. बच्चे पहली बार, स्कूल की बच्चियां, माय फर्स्ट मैगी, 15-20 फोटो, मैगी पानी में डाला, मैगी उबाला, चम्मच से खाया. अब इतने छोटे इवेंट को भी हम लोग डिजिटल मीडिया पे इतना बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, और जो आदमी पैठनी बुनता है उसके घर वालों को लगता है इसने 1.5-2 महीना मेहनत पटकी और इसके कहीं पे सोशल मीडिया पे कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है. तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को रिकॉग्निशन का पैरामीटर हो गया इंस्टाग्राम पे कितना आपका प्रेजेंस है, फेसबुक पे आपका कितना प्रेजेंस है,
और ये कहीं ना कहीं हम लोग लाके दे सकते हैं। माने आज भी अगर यहाँ पे आपने वर्कशॉप में जो भी काम किया है, जो आपको पढ़ा रहे थे, आपने काम किया, आपने कुछ ब्लॉक्स प्रिंट किए, सपोज फॉर एग्जांपल, अपने फोटो तो डालिए ही, डेफिनेटली आई लर्न ब्लॉक प्रिंटिंग, बट हु टॉट यू? फ्लड द मार्केट विद हिज फोटो ऑल्सो। एटलीस्ट 2 दिन ये फोटोग्राफ जब एक्सचेंज होते रहेंगे तो उन तक ये पहुंचता है कहीं तो भी, एंड दैट एक्चुअली मोटिवेट्स। पैसा हर चीज में काम नहीं करता, मोटिवेशन लेवल बहुत मैटर करता है, और यही कहीं तो भी लैकिंग है। ये मोटिवेशन लेवल जाम्बुवन के रोल में, मेंटर के रोल में सॉफ्ट से शुरू होगा, या चल ही रहा है बट ये फास्ट होगा। कैटलिस्ट समान इसको हम जितना फास्ट कर सके बेहतर, क्योंकि ये मार्केट आगे के 2 या 3 सालों में अदरवाइज बाहर की कंपनी आके लूम डाल के चालू कर देगी, एंड देन वी मे इवन लूज दैट पार्ट ऑल्सो। माने हम लोगों ने जैसे गणपति को अपने पास रखा, खुद की मूर्तियां बनाना चालू करके, अदरवाइज चाइना से आना चालू हो ही गए थे, और कुछ दिनों बाद गणपति का त्योहार हमारा और मूर्तियां चाइना से आई रहती, और विसर्जन का टेक्निक भी चाइना वाले ही बताते हमें, और पता नहीं आरतियां भी शायद चाइनीज मोड टोन में आ जाती, तो पता नहीं और क्या क्या कर सकते थे, बिकॉज दे कैन सेल एनीथिंग। सो बिफोर द वर्ल्ड ग्रैब्स दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, it's what we have to rise, and we have to really fight hard to regain and reclaim our own position in sustainable fashion. Thanks a lot for bearing me for 15 minutes. Thank you.